So friends, in this video lecture, we'll discuss the process of oogenesis. Okay. Now, oogenesis क्या है? Oogenesis is that process by which female gamete, that is oocyte, okay, or also called as ovum, is formed within the ovaries, right? So it is a process by which female gamete, that is called as oocyte, or that is called as ovum, or simply as egg, is formed. This process occurs within the ovaries. यहाँ पर एक interesting point है. हम जानते हैं कि जो spermatogenesis है, the spermatogenesis in human males begins at the puberty. जब males जो है reproductively mature हो जाते हैं, तब जो है उनके testicles में spermatogenesis begin हो जाती है. But here we see a different perspective. यहाँ पर there's a contrast between spermatogenesis and oogenesis. क्यों? जो process of oogenesis है, it begins during the embryonic life of females. As soon as a female is just 1 month old, जब एक female baby अभी fetus जो है, अभी embryo जो है सिर्फ मदर के womb में एक ही month old हुआ है, और उसकी ovary में the process of oogenesis begins. This is very important and very interesting that in females the process of oogenesis begins during embryonic development. During embryonic development, when? As soon as the embryo is only 1 month old, the process of oogenesis begins. This is the first difference between oogenesis and spermatogenesis. Okay. Second is that the process of oogenesis is discontinuous. The process of oogenesis is discontinuous. हमने males में देखा कि spermatogenesis जब start होता है at puberty, then it does not stop. It goes non-stop. It does not stop. It may decline after the age of 85. That is called as male climactic. अगर add here, male climactic. It is the condition, okay, in which the process of spermatogenesis declines. It occurs between the age of 85 onwards, 85 to 90. But the process of spermatogenesis does not stop. Whereas in females हम क्या देखते हैं, जो process of oogenesis है, it begins during embryonic life during the first month of gestation, but then at some time it stops. फिर एक वक्त में stop हो जाता है. We'll discuss कब हो जाता है. Okay, stop होने के बाद फिर कुछ टाइम 10-12 साल 9-10 साल चले जाते हैं and it is resumed back. Okay, resume होता है, then it again goes, then stops, then again goes. Okay, तो ये जो है oogenesis कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है. इसमें एक बार स्टार्ट हुआ है, फिर हाल्ट हो जाता है, फिर रिज्यूम होता है, फिर हाल्ट होता है, फिर रिज्यूम होता है. दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल these features, the process of oogenesis is called as discontinuous process. There are two major differences between the spermatogenesis and oogenesis. Number one, oogenesis starts during embryonic life, whereas spermatogenesis starts after puberty or at puberty. Second, the oogenesis is discontinuous, whereas the process of spermatogenesis is continuous. Now, let's have some figures. Okay, one more thing is that one more difference is that कि process of oogenesis जो है basically फिर ओव्यूलेशन का होना, oogenesis जो है process, इसका half of the process जो है that stops totally at the age of 40 to 45, or NCERT says around 50 years, and that is called as menopause. We'll talk about later in next lecture about that thing. This is one more point, but the process of spermatogenesis does not stop. It may decline. What I just a while ago told you, that male climactic, the process of spermatogenesis declines, but it does not stop. Whereas the process of oogenesis, it stops. It totally stops in females. Fine. Okay, let's have now a look at certain figures. When the female fetus, female embryo is only 1 month old, जब female fetus जो है womb के अंदर है, mother के womb के अंदर है, सिर्फ 1 month old होता है. At that time there are 1700 primary follicles, or we can say oogonia. Just 1 month old baby, and how many ovary follicles are there? How many ovary are there? 1700. It means कि ovary का germinal epithelium जो है, it begins to multiply, it begins to divide through the process of mitosis. Okay, 1 month के अंदर ये germinal epithelium ovary का divide हो गया, और कितने follicles बने? 1700 follicles, 1700 oogonia primary follicles. Then जब ये baby जो है, यही fetus जो है second month का हो जाता है,
Okay, during the second month of gestation of this female baby. We are talking about oogenesis. It occurs in females. Okay, mind you. So जब second month का ये हो जाता है, ये baby हो जाता है, fetus हो जाता है, उस वक्त second month में कितने primary follicles होते हैं? There are 7 lakh primary follicles. You see this astonishing figure. Again, जब यही fetus जो है 5 months का हो जाता है, 5 months, when the baby becomes 5 months old, not the baby, when the fetus becomes 5 months old, there are 7 million such primary follicles. Okay, huge number of primary follicles are present in each ovary. 7 million in each ovary. There are 2 ovaries in female, right one, left one, and 7 million in each ovary. Fine. जब 7 million तक फिगर पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है? Many primary follicles they degenerate. Okay, the process of degeneration starts. ये 7 million primary follicles दोनों ovaries के अंदर, एक ovary के अंदर 7 million, दूसरी ovary के अंदर 7 million. Then a process called as atresia, follicular atresia. Follicular atresia begins. Follicular atresia क्या है? It is the degeneration. It is the degeneration of follicles. It is the degeneration of follicles. बहुत सारे follicles degenerate हो जाते हैं. That's called as follicular atresia. और इतना degeneration हो जाता है कि जब एक फीमेल बेबी की बर्थ होती है, at birth each female ovary has 2 million primary follicles. पहले 7 मिलियन थे, जब बर्थ हो जाती है, बर्थ के टाइम पे एक फीमेल बेबी के ओवरी के अंदर, ईच ओवरी के अंदर कितना होता है? 2 million primary follicles. So a huge number of primary follicles have degenerated through the process of follicular atresia. ओके, और जब ये फीमेल, इसकी बर्थ होगी, अब क्या होगा? अब 8, 9 साल, 10 साल गुजरेंगे और ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएंगी. और जब ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती है, तब जब देखते हैं उस वक्त की कंडीशन ओवरी की क्या होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी देयर आर ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स. आप देखिए, पहले 1700 थे, फिर 6 लाख बन गए, फिर 7 मिलियन बन गए. उसके बाद डिजेनरेशन स्टार्ट हुआ. जब बर्थ हुई तो सिर्फ 2 मिलियन थे. अब जब प्यूबरिटी हुई तो कितने हैं? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी. ओके, और इन 60,000 या 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, इनमें से हर 500 प्राइमरी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है each month. वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. हमको पता चलेगा कि फीमेल्स में जो प्राइमेट्स हैं, एप्स हैं, मंकीज हैं और ह्यूमन फीमेल्स हैं, उनमें मंथली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. इस साइकिल के दौरान अ सिंगल ovum is released each month. Fine. तो यहां पर याद रहेंगे, out of every 500 primary follicles only one develops and changes into the egg or ovum or oocyte. Rest जो है they form the follicular coverings of this very follicle. Okay, now let us see what is the process of oogenesis. Process of oogenesis क्या है और कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है? इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी शॉर्ट प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस रादर. इस प्रोसेस में जो है द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 is step of multiplication. Step of multiplication. अभी हमने बोला कि multiplication फीमेल्स में जो है, जो पहला स्टेप है, it begins during embryonic life. It begins during first month of embryonic life. तो यहां पर ये देखिए, ये germinal epithelium, ओके, और यहां से क्या हुआ? germinal epithelium से egg mother cells जो है इन्होंने डिवाइड किया. during first month of gestation, during first month of embryonic development, germinal epithelium undergoes multiplication through mitosis. It undergoes multiplication through mitosis. और यहां पर क्या बनेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स. ओके, यहां पर oogonia बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे. कितने बनेंगे? मिलियंस बनेंगे. ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स बने. ये फीटल लाइफ के दौरान होता है. ओके, ड्यूरिंग 9 मंथ्स ये चीजें होती है. मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड. उसके बाद ठीक है ना, इनमें से इन सारे, अभी हमने कहा कि आउट ऑफ एवरी 500 फॉलिकल्स ओनली 1 फॉलिकल ग्रोज. वो जो फॉलिकल ग्रो होता है ना, बाकी उसकी कवरिंग बनाती है. वो जो फॉलिकल ग्रो होता है दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte. प्राइमरी फॉलिकल, और उसके अंदर जो oocyte होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte. सो egg mother cell divides. It gives number of primary these oogonia. It gives number of oogonia. These are called as oogonia. It gives number of oogonia during fetal life, millions. Out of these, only one. Okay, out of these millions of, out of every 500 oogonia, only one oogonium develops, and rest of the oogonia form a covering around it. This oogonia which grows, okay, which develops, is called as primary oocyte. Is called as primary oocyte. ये primary oocyte क्या है? It is diploid.
इट इज डिप्लॉयड। जब ये तो एम्ब्रियन लाइफ में हुआ, अब जब इस फीमेल बेबी की बर्थ होती है, एट बर्थ प्राइमरी oocyte जो है इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट, इट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में चला जाता है। हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट क्या है, मियोसिस फर्स्ट जो है ये है रिडक्शनल डिवीजन। ओके, अब प्राइमरी oocyte जो है इट विल डिवाइड एंड इट विल गिव सेकेंडरी oocyte। ये दो सेल्स बनेंगी यहां, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जब बेबी की बर्थ हुई तो प्राइमरी oocyte ने क्या किया, इट अंडरवेंट मियोसिस फर्स्ट, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं करती है, बल्कि मियोसिस फर्स्ट का जो पहला फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है इसके सब फेज है, इसका पहला फेज है लेप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, फिर है पैकेटीन, फिर है डिप्लोटीन। जो ही ये प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन पे पहुंच जाती है ये अरेस्ट हो जाती है, डिप्लोटीन के आगे ये नहीं चलती है, यानी डिप्लोटीन नहीं होता है कंप्लीट। इसके बाद डायकाइनेसिस होना था वो नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर मेटाफेज फर्स्ट होना था, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट, ये सारा कुछ नहीं हो रहा है। हुआ क्या, बेबी की बर्थ हुई, प्राइमरी oocyte ने जो है it went under meiosis first but it was arrested, it was arrested किस स्टेज पे, it was arrested at diplotin of prophase first। तो बर्थ होगी बेबी की, प्राइमरी oocyte ने जो है इसको डिवाइड करना था, इसने डिवीजन स्टार्ट किया, मियोसिस स्टार्ट किया, लेकिन at diplotin of prophase it was arrested, ठीक है। और ये इसी अरेस्ट में रहती है टिल प्यूबर्टी। ये जो प्राइमरी oocyte है ये इसी डिप्लोटीन में रहते हैं टिल प्यूबर्टी। अब जब फीमेल जो है 9 से 10 11 साल तक की हो जाएगी उम्र में, तब ये जो है ये प्राइमरी oocyte फर्दर प्रोसीड करेगी। ओके, सो दिस व्हेन दिस इज हाल्टेड एट डिप्लोटीन, दिस फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज रिज्यूम्ड एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी होगी तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन रिज्यूम होती है। ओके, और डिप्लोटीन कंप्लीट हो जाता है, फिर मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, और रिजल्ट क्या होगा, दिस प्राइमरी oocyte जो है इट विल गिव राइज टू 2 सेल्स, इट विल गिव राइज टू 2 सेल्स। यहां पर मैं रोकना चाहूंगा एक बात के लिए कि अब प्राइमरी oocyte ने जब डिवाइड करना स्टार्ट हुआ था, मियोसिस स्टार्ट किया था, फिर प्यूबर्टी तक मियोसिस नहीं अरेस्ट हुआ, इस दौरान क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte इट ग्रोज इन साइज, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट ग्रोज इन साइज। यहां पर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज इतना लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, लेकिन फीमेल्स में oogenesis के दौरान ग्रोथ फेज इज वेरी लॉन्ग। कितना लॉन्ग है ग्रोथ फेज, इट मे बी अप टू 9 years लॉन्ग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन ह्यूमन फीमेल्स ग्रोथ पीरियड इज एज लॉन्ग एज 9 years, इट इज एज लॉन्ग एज 9 years। फाइन, अब प्राइमरी oocyte इट विल अंडरगो मियोसिस, हमने बात की क्या क्या होता है, जब व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस इट इज इट्स सेल्फ डिप्लॉयड सेल, इट विल अंडरगो मियोसिस, इट फॉर्म्स 2 सेल्स, इट फॉर्म्स 2 सेल्स। लेकिन यहां पर हमको याद रखना है कि ये डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होता है। यहां 2 सेल्स बनती है, एक सेल जो है इसमें सिर्फ उसके अंदर सिर्फ जो है न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं रहता। लीस्ट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्लेस्ड इन दिस सेल, ओनली न्यूक्लियस इज देयर एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो पहला स्मॉल सेल बना जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होगी, मियोसिस फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट पोलर स्मॉल सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ी सेल बनती है यहां पर, जहां पर न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है अच्छा खासा है, दिस कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। नाउ ये सेकेंडरी oocyte क्या होगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, बिकॉज ये प्राइमरी oocyte से भी नहीं, प्राइमरी oocyte अंडरवेंट मियोसिस, ठीक है। तो ये प्यूबर्टी पे हो जाता है। सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो मियोसिस सेकंड। हम जानते हैं मियोसिस के 2 फेज है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड होना है, लेकिन सेकेंडरी oocyte, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताऊंगा कि वो ये है कि ह्यूमन फीमेल्स में मैंने भी कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, फिर साइज में ग्रो होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रो होता है। जब हमने ओवरी का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया तब हमने बताया, फिर ग्राफिन फॉलिकल बनता है, एंड ऑन द 14th डे ऑफ द मंथ ये ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ओके, रप्चर जो है तो रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन ओव्यूलेशन ऑकर्स इन फीमेल्स, ओके, दे डोंट रिलीज द एग, एग वहां रिलीज नहीं होता है, रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो है फिर क्या करेगी, इट विल अंडरगो मियोसिस सेकंड एंड इट अंडरगोज मियोसिस सेकंड, इट अंडरगोज मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड का पहला फेज क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, फिर क्या होगा, मेटाफेज सेकंड। जो ही सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज सेकंड पे पहुंच जाती है, इट इज अरेस्टेड अगेन, इट इज अरेस्ट अगेन। ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाती है। अब ये प्रोसीड नहीं करती, ये वेट करती है किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हो गया, देन
ये जो है सेकेंडरी oocyte, इट विल डिवाइड, इट विल फॉर्म टू सेल्स, इट फॉर्म अनदर स्मॉल सेल, ओके, एंड लार्ज सेल। ये जो दूसरी स्मॉल सेल बनेगी, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड पोलर बॉडी, और जो फाइनल सेल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ओवम और oocyte। इस दौरान जो पहला पोलर बॉडी बना था, फर्स्ट पोलर बॉडी, वो क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, इट इज नॉट नोन वेदर दिस डिवाइड्स और नॉट, whether this first polar body divides or it does not, ये पता नहीं, ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ ये डिवाइड करता है नहीं। अब अगर डिवाइड करेगा what will form? It will form two polar bodies, it will form two polar bodies। तो फाइनली कितनी पोलर बॉडीज बनेगी? ये दो और ये एक, तीन पोलर बॉडीज बनेगी। ठीक है, अब मैं इसको, ये तो हमने बीच बीच पे देखा कि कहां पर ये स्टॉप हुआ, कहां पर रिज्यूम हुआ, मैं एक बार फिर बताऊंगा। oogenesis बहुत सिंपल है। कैसे है? जर्नल एपिथेलियम, ठीक है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये डिवीजन होगा, माइटाइज करेगा, तो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे या ऊगुनिया बनेंगे। ठीक है, इन सब ऊगुनिया में से हर मंथ सिर्फ एक ऊगुनिया जो है वो ग्रो करेगा, दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या करेगा? इट अंडरगोज meiosis फर्स्ट एंड इट गिव्स टू सेल्स, वन सेल इज स्मॉलर, अनदर सेल इज लार्ज। ये जो स्मॉलर सेल है इट इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो लार्ज सेल इट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, और इसी फेज में, इसी स्टेज में इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्राफियल follicle। secondary oocyte क्या है? It is haploid। Now further secondary oocyte undergoes meiosis second and it forms two cells, it forms a small structure, small called second polar body, and a large cell called as ovum or oocyte। Fine। Now ये oocyte कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? We will have we'll describe the structure of egg or oocyte। Fine। oocyte क्या है और egg क्या है? Okay, oocyte और egg, oocyte और egg, it is the final non-motile, it is final non-motile female gamete, it is final non-motile female gamete। ये जो oocyte होती है इसके दो तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में जो है इसमें दो तीन मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में जो है तीन मेम्ब्रेन्स कौन कौन से? जो oocyte है या ओवम है, इसका जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दैट इज कॉल्ड एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, oocyte का अपना जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर देयर इज अ नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन, ये जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया, दिस वन, okay, outside the vitelline membrane there is a non cellular jelly like membrane called as zona pellucida। this is very important membrane, very important membrane, zona pellucida। ये zona pellucida नॉन सेल्यूलर है, और ये कौन सिक्रेट करता है? ये ओवम जो है खुद सिक्रेट नहीं करता, बल्कि जो अराउंड इसके ओवम के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स है वही सिक्रेट करती हैं। सो जोना पेलुसिडा इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, इट इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, हो गए दो लेयर। फिर थर्ड लेयर है, इट इज मेड ऑफ सेल्स, और ये सेल्स जो है ना, these cells are like, these seem to arise और originate। ऐसा लगता है कि ये सेल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, बाहर की तरफ खींची जा रही है, बाहर की तरफ खींची हुई है, they are radiating, they are coming out, it seems that these cells are coming out of the ovum। ठीक है, दे आर रेडिएटिंग सेल्स, राइट, दीज आर फॉलिकुलर सेल्स। और ये जो सेल्यूलर कवरिंग है, ये जो जोना पेलुसिडा के बाहर covering of cells है, this is called corona radiata, this is called as corona radiata। now let us move to the inside। जब हम oocyte के अंदर चले जाते हैं, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इट इज डिस्टिंक्ट और इट इज डिस्टिंग्विश्ड इन टू रीजन्स। जो साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स पेरिफेरी है, द साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte व्हिच इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स ऑफ एग और एक्सोप्लाज्म, is called as cortex of egg or exoplasm। और जो साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द इन द सेंटर ऑफ द सेल है, जिसमें न्यूक्लियस आएगा और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज आएंगी, दैट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज ooप्लाज्म। सो ooप्लाज्म, तो ooप्लाज्म जो है, इट इज द सेंट्रल साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स न्यूक्लियस एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज। जो न्यूक्लियस है oocyte का, चूंकि लार्ज साइज में, okay, this larger in size and it is called as germinal vesicle, it is called as germinal vesicle। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में यह है, this nucleus is eccentric, that is ये सेंटर में नहीं है,
इट इज अ बिट टुवर्ड्स वन साइड, एक साइड की जानिब है, सेंटर में नहीं है। जब ये पोजीशन है तो ऐसे पोजीशन को कहते हैं एक्सेंट्रिक। इससे क्या होता है, क्योंकि अब न्यूक्लियस जो है, नाउ न्यूक्लियस इज नॉट सेंट्रल इन पोजीशन, इट इज टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एग। दिस eccentric position of nucleus, germinal vesicle, it gives polarity to the egg. Okay, so we must remember that oocyte is polar in nature. It is polar in nature. What is polar? We are not talking about charge. We are talking about there are two sides. Due to eccentric position of nucleus, the whole oocyte is polar. It is having two sides. The side of the oocyte where nucleus is located towards periphery located है ना, यहाँ हम कहेंगे जिस साइड में न्यूक्लियस लोकेटेड है that side is called as animal pole. That side is called as, so animal pole is the side or the region, okay, or the side or the pole of the oocyte towards which nucleus is located. इसका जो अपोजिट एंड होगा, अब ये एनिमल पोल होगा, इसका जो अपोजिट पोल है दैट इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल. दैट इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल. नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाई इज पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक? अदर देन ह्यूमंस, okay, the eggs are having content of yolk, और वो yolk जो है that pushes the nucleus towards one side. Human egg में there is a debate कि human egg में yolk होता है या नहीं होता है. Now some say that a little amount, negligible amount of yolk is present within the human egg cell. That's why human egg cell is sometimes called as microlithal. It's called as microlithal because some amount of yolk is settled. You cannot have an egg without yolk. Okay, so we say animal pole and vegetal pole. One more important point है, ये animal pole वो pole है, इसी pole के through जब sperm आएगा, egg को fertilize करेगा, the sperm comes through this animal pole. And पहला जो zygotic division होगा वो इसी plane में होगा. The first zygotic division occurs in the same plane. किस plane में? जहां से, जिस plane से sperm ovum के अंदर enter करता है. Right? Fertilization and first division occurs in this very plane. Right? Zona pellucida से यहाँ पर मुझे याद है कि zona pellucida बहुत इंपॉर्टेंट है. एग जो है ना, ये यूट्रस में एक खास जगह इम्प्लांट होता है, यूट्रस में, कहीं और इम्प्लांट नहीं होता है. अगर जाइगोट यूट्रस के बजाय कहीं और, if the zygote gets implanted other than the uterus, that pregnancy is called ectopic pregnancy. Now zona pellucida is the layer which prevents ectopic pregnancy. It prevents the zygote from getting implanted in other position other than uterus. It makes sure that the zygote gets implanted within the uterus. So we saw that then there is one more layer called corona radiata. I told you already that there are some. Now we can talk about egg membranes. Okay, egg membranes. So number one we have vitelline membrane. Okay, number one we have vitelline membrane, or that is also called as plasma membrane. Second we have zona pellucida. Okay, third layer is corona radiata. And fourth layer that's not found in human eggs, but other kinds of eggs we have four eggs called as shell. Okay, this is made up of calcium carbonate, and this is secreted by shell glands. This is secreted by shell glands which are present in the oviducts. जो बाकी, and for example hen है etc है, उनमें जो है ये शेल ग्लैंड्स प्रेजेंट एंड दे सिक्रीट अ शेल. फाइन. अब जहां पर ग्रोथ की बात हो रही थी, ग्रोथ जो सेकंड स्टेप मैंने कहा, ग्रोथ जो है जब oogenesis होती है तो ग्रोथ का पीरियड लंबा है. इन ह्यूमंस इट्स 9 years ऑलमोस्ट. ठीक है, ये ग्रोथ का पीरियड क्यों जरूरी है? ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ओवम होता है इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन है? वो है योग. दैट इज योग. तो ग्रोथ के दौरान क्या होता है? द एग इंक्रीज इन साइज एंड इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स लाइक योग. ह्यूमन जो एग है, ह्यूमन एग इट इंक्रीजेस 200 टाइम्स इन साइज. ओके, ह्यूमन एग जो है इट इंक्रीजेस 200 टाइम्स इन साइज. जो हैन का एग है, हैन का एग भी जो है इट ऑल्सो इंक्रीजेस 200 टाइम्स इन साइज. अगर हम फ्रॉग की एग की बात करेंगे, फ्रॉग एग इट इंक्रीजेस 2000 टाइम्स. ओके, फ्रॉग का एग जो है इट इंक्रीजेस 2000 टाइम्स. अगर हम ड्रोसोफिला के एग की बात करेंगे इट इंक्रीजेस 90,000 टाइम्स. ड्रोसोफिला, ओके, ड्रोसोफिला इट इंक्रीजेस 90,000 टाइम्स. योग क्यों चाहिए? ह्यूमंस में प्लेसेंटा बनता है तो ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है. एग को न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्रस आएगा, यूट्राइन वॉल आएगा. लेकिन हैन की बात करेंगे तो एग जो है इट इज लेड आउटसाइड द बॉडी, फिर वहां से एम्ब्रियो निकले, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन देगा? योग देगा. इसी तरह से फ्रॉग में भी वो प्रोसेस होती है, योग से आता है, ड्रोसोफिला में एक्स्ट्रा.
ठीक है. So as such, we completed the process of oogenesis and we also described the structure of oocyte or ovum. In the next video, we'll be discussing the process of menstrual cycle. Thank you very much.